हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट जो है साइंस है और वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द ईयर, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द वाटर and we have defined, we have discussed regarding the different aspects of the soil. Now today we have to discuss regarding the soil erosion. Erosion means erosion से आप बिल्कुल वाकिफ हैं। soil erosion आपका इंग्लिश में ऐसे होता है। soil erosion हमारे डे टू डे लाइफ की एक एग्जांपल है जो हमारी सॉइल जो है, रिमूवल ऑफ सॉइल बाय डिफरेंट एक्शंस। सॉइल हमारी जो है मिट्टी का उड़ना, मिट्टी का बहना, मिट्टी का मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, उड़ना एक यूनिवर्सल लॉ which we have studied earlier, that universal law is there that nothing is created, nothing is destroyed, but it can be changed from one form to another form. So as far as the soil erosion is concerned, erosion means to removal of the soil from one place to another, means removal of soil from one place to another, otherwise it cannot remove. हम बहुत बात करेंगे कि हम बोल देंगे कि ये सॉइल बिल्कुल कहीं चली जाती है, कहाँ जाती है, कहीं उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है, हवा में भी उड़ती है, फिर पानी के साथ भी जाती है, कहीं स्लाइड के साथ भी जाती है, कहीं दरिया के साथ भी जाती है, नालों के साथ भी चली जाती है। सारा जो है सॉइल एरोजन होता है। सॉइल को हमने बात की कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किस तरह से होती है, ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का, फिर डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उससे हमारी सॉइल बनती है, बट इट विल टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू form a millimeter of a soil. एक मिलीमीटर हम सॉइल की बात करें, it will takes its formation near about these 100 years. अगर 100 साल में हमारी एक मिलीमीटर सॉइल बनती है, तो जहाँ तक उड़ने का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि there is a change in our surroundings. What happens? We are observing that there is a dust particle in the atmosphere, and we are unable to see up to half a kilometer, आधा किलोमीटर, जहाँ where the constructions of road, constructions of building are taking place, where there is a this establishment of these factories and industries. We are observing that the pollution is increasing in such a level that has completely changed the natural circumstances. What were the earlier, there is difference. It is due to the development. I have told you in the earlier units that pollution is done by the development. The steps which are taken for the development, the steps which are taken for the advancement of any country, for any village, for any city, for any states, where there are these situations where there is a developmental projects, means constructions of roads, constructions of foreways, ultimately these are responsible for soil erosions. We are observing in our district that 4-lane work is going on in our national highway, and we are seeing that mountains से जो है it is sliding to, मतलब slidings इतनी होती हैं कि हम even we can walk a few kilometers on the national highway. It seems that we are
we have on the road for the last 1 month, हमारी इतनी पोल्यूशन से इतने हमारे डस्ट भर जाती है, हमारी गाड़ियों की हालत बदल जाती है. सो इट्स ऑल एरोजन. वंस कहीं पे लूजनिंग ऑफ सॉइल हो जाता है, हम एक्टिविटीज करते हैं, सपोज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस we can plow our these agriculture fields, and before growing, अभी seed germinates नहीं होते हैं. What happens? Suppose the winds blow. Once the field is leveled and plowed by any equipment, either इसको मैनुअली किया है, मशीनरी से किया है, जैसे भी इसकी मिट्टी को नरम किया है. When the soil is loosened, and if it happens that there is a wind, there are winds below, it is observing that the top layer of the soil is flowing in the atmosphere, means they go along with the wind. और हम देखते हैं कि देखते ही रह जाते, हमारी आंखें भर जाती हैं, और देखते देखते विंड्स बलो होते हैं उस फील्ड के. हम देखते हैं कि बिल्कुल हवा की नॉट 1 millimeter बट आई थिंक इंचेस ऑफ सॉइल इज eroded by the winds. It means there is not only one cause of soil erosion. हम इसको पहले आप लिख सकते हैं इसको, the process of removal of superficial fertile top layer of the soil by various agencies, forces, is called as soil erosion. जब भी जो टॉप लेयर है जो बड़ी फर्टाइल होती है, फर्टाइल मीन्स उसमें ह्यूमस होता है, दैट इज ए फिट फॉर fertile soil in which different types are cultivated easily, and we can grow, we can obtain a huge production. Means that top layer which is filled, which contain the humus, जिसमें वो जो है फर्टाइलिटी होती है, ह्यूमस होता है, वो मिट्टी उड़ जाती है, फिर उधर रहेगा क्या. मीन्स soil erosion involves the movement of soil from one place to another place. जब हवा का चलना आता है तो यह हवा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. फिर इट में भी ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर सपोर्ट्स रेन्स. फील्ड्स की बात तो क्या तक करेंगे, इफ दे आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन, इफ वो जो पानी के प्रोविजन नहीं किए होंगे, उनकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा, ऑल द topmost layer of the soil will eroded. There is soil erosion will takes place by the rain water once it is raining, and that water, the rain water will take all the soil, all the upper part of the earth's the surface, the soil which is on the upper part of that area, that is eroded by the running water. Running water जो rain water का पानी आएगा जो रन करेगा, which is not absorbed by the earth. We have observed that once it is raining, all the water is not absorbed by the earth. सारा जमीन के अंदर जज़ब नहीं होता है. कुछ पानी जो है वो बहता है, कुछ पानी टिक जाता है, फिर कुछ पानी लवर एरिया की तरफ, जो एरिया थोड़ा नीचे है, मीन्स लवर एरिया है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा. मीन्स हमारा पानी जो खेत है, तो हमारी सॉइल जो है, सॉइल यहाँ से पानी के साथ बहते बहते यहाँ की तरफ आएगी और अल्टीमेटली जमा हो जाती है जहाँ पे प्लेन एरिया है. प्लेन एरिया जहाँ पे होगा, दैट सॉइल एरोडेड, जो भी एरोजन हुआ सॉइल का, और ये यहाँ पे ढेर जमा हो जाती है. ठीक है ना, तो यू आर वेल ऑफ द फैक्ट. और इसमें जो है ये पानी के जरिए हो सकती है, ये फ्लड के जरिए से हो सकती है, ये रिवर इसको ले सकती है, इसको विंड ले सकती है. दिस इज कॉल्ड एज सॉइल एरोजन. नाउ अब इसको जो है, इस एरोजन को, सॉइल एरोजन मींस जो हवा का, आप, मुझे लगता है कि आप जो है इसमें पूरे समझ गए होंगे कि चाहे मिट्टी का
उड़ना, मिट्टी चाहे हवा से उड़े, मिट्टी चाहे उड़ना मीन्स एक जगह से दूसरी, अल्टीमेटली दैट विल small fine particles will remain in the atmosphere as a dust particles. The heavier particles again come down to the earth to somewhere else. उस जगह से उठ के दूसरी जगह पे कहीं जाएंगे। वो मिट्टी जो है that will mix with rain water and वो उसका भी erosion हो जाएगा। Then कहीं पे stream है, कहीं पे dust storm आ जाता है, आंधी का तूफान, डस्ट स्टॉर्म। वो आप देखते हो कि जमीन के ऊपर इतनी मिट्टी उठती है कि हम कुछ देख नहीं सकते, मीन्स दैट इज कॉल्ड एज डस्ट स्टॉर्म। इस तरीके से मिट्टी का होता है नो। क्या क्या तरीके हैं, किन तरीकों से हम इनको रोक सकते हैं, या हम कैसे, व्हाट आर दी प्रोविजन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल एरोजन को। हाउ विल प्रिवेंट द सॉइल एरोजन, either by the rain water, either by the flood, river water, either by the dust storm, either by whatever the causes of soil erosion was. What are the steps which we will took for prevention of soil erosion? आप देखते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है, जहाँ पर कटिंग का, लूजनिंग ऑफ द ये जो एरिया है, किसी भी मलबे को, किसी भी टॉप लेयर को हम जो है वो उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करने से टॉप लेयर जो है वो बिल्कुल नरम हो जाती है, और वो हवा, वो मिट्टी जो है हवा से भी उड़ती है, पानी से उड़ती है, इससे उड़ती है। नाउ स्टेप्स ये है कि जो हमारा ग्रासेस प्लांट्स है, फिर हमारे प्लांट्स चाहे लगाओ, घास लगाओ, वेजिटेशन है, देन हेजेस है, ट्रीज है, हर्ब्स है, शर्ब्स है, वट एवर द प्लांट्स आर। सपोज नंबर 1 कि प्लांट्स जो है वेजिटेशन, सिंपली हम बात करेंगे वेजिटेशन की, ग्रासेस की, डिफरेंट टाइप, दिस ग्रासेस फैमिली, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। हम देखते हैं, अगर हम आज के दौर में, सपोज इन आज के दौर में, इस सीजन में मौसमों को भी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सर्दी, गर्मी, बहार, खज़ां, पतझड़ वगैरह वगैरह। तो अब जो है आज का ये जो दौर है, ये फसलों का दौर है, ये जो गर्मियों का दौर है, इसमें आप जहां भी नजर मारिए तो आपको ग्रीनरी दिखती है। ग्रीनरी मीन्स everything which we look around us, that looks green. Green means these all are plants. It is the presence of the plants. Then plants can be classified into different categories. So there are big plants, small plants, unicellular plant, multicellular plants, तरह तरह की हमारी grasses फैमिली है। Even almost all the grass families has not been discovered till, अभी तक जो है बहुत सारे घास की टाइप जो है, स्पीसीज ऑफ घासेस जो है, there are varieties, there are numbers, millions of types of these plants. We are not going to discuss regarding them, but one thing is common, all these plants, whether those are big plants or small plants, all plants bear roots. They bear roots, and roots जो हैं, roots, the function of roots in plant is to absorb the mineral and water resources. जैसे कोई भी प्लांट है, इनकी जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं प्लांट्स कि इनके अंदर सिस्टम है, हमारी रूट्स के अंदर हमारा जाइलम फ्लोइम टिश्यू सिस्टम है which can conduct the water and mineral resources to the upper part of the plant. Means the water and mineral resources जो प्लांट ज़मीन से लेता है and that is transported to the aerial part of the plant by a system. There is a system, xylem and phloem tissue, which are responsible for conduction
of these water and minerals to the upper part of the area. But here we are the only one concern of the root, that these roots, the other function, first function is that they can conduct the water and mineral resources for the plant. Then they gives mechanical support to the plant. ये जड़ों की वजह से है कि एक बड़ा दरख्त जो है वो खड़ा हो सकता है. एंड देन दूसरा हम कह सकते हैं कि वो जो है इस सॉइल को प्रोटेक्ट करती हैं. दीज रूट्स आर मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल. सो वंस जो है देयर इज ए डिफॉरेस्टेशन. हम जब भी वो एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट को कट किया जाए, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का सफाया होता है, एंड दैट एरिया विच इज फुल ऑफ फॉरेस्ट एट वन टाइम, वी विल सी दैट इट हैपन्स दैट देयर इज नो प्लांट इन फ्यूचर. वी विल सी दैट विल बिकम ए डेजर्ट. वो क्या है, डिजर्टिफिकेशन होता ही इससे है. सपोज कोई पहाड़ जो है वो नंगा हो जाता है, प्लांट्स सारे उसके प्लांट्स को कट, डिफॉरेस्टेशन हो गया. फिर जो उसकी रूट्स जो थी, रूट्स अपना काम तो करते ही थे, लेकिन रूट्स जो हैं अलोंग अपने काम के जो है वो जो अपना काम के अलावा वही सॉइल प्रोटेक्शन करते हैं, सॉइल को पकड़े रखते हैं. तो ये सॉइल को जब पकड़े रखते हैं तो जब ये सारे उड़ जाते हैं तो हमारी सॉइल का एरोजन होता है. नंबर 1. नंबर 2 है, हमको लेवलिंग करनी है. हमको जो ये फील्ड्स हैं, इनको जो भी फील्ड हमारा या एग्रीकल्चरल जो डिपार्टमेंट है, he will give funds, he will allocate the funds. Allocation of funds takes place in the agricultural department for leveling of land. Suppose कहीं पे लैंड लेवलिंग होता है, और लैंड लेवलिंग से क्या हो जाता है कि हमारा जो सॉइल एरोजन होता है, जो मिट्टी अगर एरिया कहीं पे बराबर का हो तो हमारी मिट्टी कहीं नहीं जाएगी एज रिजल्ट ऑफ रेन. बट वंस देयर इज ए स्लोप, अगर वहाँ पे स्लोप है, एक एरिया ऊपर है दूसरा नीचे है, अल्टीमेटली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल एरोजन. सो हमें फिर इसके लिए क्या करना है, हमें इसको बराबर जो है वो जमीन को बराबर करना है, लैंड लेवलिंग करनी है, बॉन्ड्स जो है प्रोटेक्शन वॉल्स लगानी है, प्रोटेक्शन वॉल लगानी है जो दरिया के इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, सो दैट सॉइल एरोजन ना हो, एरिया जमीन का कटाव ना हो. तो ये जो है दिस वाज ऑल अबाउट द सॉइल एरोजन एंड इट्स प्रोटेक्शंस. हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं सॉइल एरोजन को. वी विल प्लांट मोर एंड मोर these trees. We will make the arrangement provision for the greeneries. हम टॉप लेयर को ऊपर से करें. फिर दूसरा भी एक कटाव जो है वो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी होता है. मीन्स हमारे नोमेड्स जो है बकरवाल वगैरह एट द हाई altitudes where there are no trees and there is a clearly means there are grasses while grazing of animals their feet, उनके पाँव जो है, उनके वो टखने जो हैं, उनके पाँव जो है वो कहीं न कहीं उस जमीन के ऊपर जो है घास को जड़ों को निकालते हैं. वंस इट रेनिंग वो उधर बड़ी बड़ी खाई बन जाती है. तो दैट इज एनदर फैक्टर ऑफ सॉइल एरोजन. तो हमको वो बंद करना है नोमेड्स को, द एरिया को प्रोटेक्ट कर, सो दैट वो जो सॉइल एरोजन ना हो. फिर जो है हम ये जो सारा जो था ये इट वाज ऑल अबाउट द सॉइल एरोजन. Thanks. This was regarding the soil. I think you have learned almost all. You understand किया होगा सारा. तो thanks. मैं नया चैप्टर लेके आऊँगा.